एंड ऑलरेडी मतलब सुपर चैट्स अगर देने का जरिया होता वो दे चुके हैं. हाँ. At some point of time, when it comes to the original or the taught biology that we have. मतलब जो नोशन है सोसाइटल नॉन Societal notion कह लो, और we have been taught the same from the start. तो अब like for us to okay with it, right? So that is where I am fine. But yes, somewhere the change of that entire base might take time for me to get back to the complete for thing. But that is the only thing that's holding me back right now. Yeah. बट मैंने सुना है कि मनुस्मृति में लिखा है इट इज अ क्राइम. Okay. ठीक है. राइट. Until Who knew the Middle East people are the most left? Dude, the mummy started looking even sad now. Mummy is turning towards right. She's trying. But you are right वाला जो like the word that obviously sounds similar, spells similar. कितना समझा रहा है. हम लोगों ने राइट हैंडेड की बात कर ली, ठीक है. वो डायरेक्शंस की बेसिस पे कर दिया. राइट विंग मतलब इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राइट. भाई पूरा हमने एस्टैब्लिश कर दिया, फिर ये बेसिक से शुरू कर. इसको कह रहा है कि आई वांट टू राइट इन माय ओन वर्ड्स. ये समझ ही नहीं पा रहा कि क्या गिवन है भाई क्वेश्चन. ओहो भाई गिवन वैल्यूज लिख चुका है 5 बार. पेपर भर. This is Hubshop Radio. Hello guys, welcome to another podcast of Hubshop Radio. Today we are chilling with Shivam. Or this is me Vinayak, this is Hemant. Hemant say hi. Hi. And Shivam say hi. हाय. तेरा कैमरा इधर है भाई. But anyhow, You did not get the hang of it yet. अब जिनके पास काम नहीं भाई बार बार बुला रहे हैं. What can be said? What can be said? क्या इनसाइड जोक है? Got personal, bro. to both of us, bro. What he means is हम दोनों के पास कोई काम नहीं है. अच्छा. बहुत सारा. वेले है ना. भाई हमारे पास काम है. इसलिए यही हमारा काम है. यही हमारा काम है भाई. हाँ. इसलिए And you have no idea how much we make with this. I think Shivam just likes him on the camera. I think so too. He has tried different methods also, but this is the best method I can. This is the best one which he can put online. Yeah. on our channel. Otherwise, he has other channels. Otherwise तो restricted है ना मतलब. वो हम नहीं देख सकते. इंडिया में तो जियो पैसे लेता है ना उस बात के. ये फीड पिक्स बेच रहा है अपनी. I am a hand model. Fuck man. ये मत बोला कर इसको. क्या? सीरियस हो जाता है. Fuck man नहीं fuck man बोलो. Fuck man to fucking man. But this was a segue, guys. Yeah. So today we are talking about that the Supreme Court, मतलब during the time that we are recording it, the Supreme Court has ongoing debates about legalizing of same-sex marriage. ठीक है. तो अब उसका YouTube पे चल रहा है full on live footages, right? Yeah, right. And मतलब the viewing is incredible भाई. सब देख रहे हैं. Everybody is listening to him. And already मतलब सुपर चैट्स अगर देने का जरिया होता वो दे चुके हैं. हाँ. लोगों का मतलब उससे पता चल जाता भाई इस बार 2024 में कौन आ रहा है. हाँ. सुपर चैट से पता कि कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं. Rider OP in the chat, guys. मोर पावर टू यू CJI. कौन. बट एनी हाउ यार. बट हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लग जाए. ठीक है. तो लेट्स स्टे इन आवर लिमिट. They're not even listening to us. Hate speech तो तब होगी ना जब पब्लिक में दोगे. भाई मेरे को किसी के भी कंटेम्प्ट में नहीं आना. मेरे को बस नॉर्मल रहना है मेरे को. Yeah, but the reality of the world is no matter how discreetly you say anything, you'll still offend like people. True. Can't make everyone happy. So ठीक है. ठीक है. क्या ही फर्क पड़ता है फिर. ठीक है. एनी फिर हम में लगने वाला है भाई. हम कुछ नहीं करने वाले हैं. बट टुडे फिर हम मतलब लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइस, डू यू सपोर्ट इट? I guess it's
it's you go fine, ahead. I guess. Like, I'm not too much against that, like legalizing it. You're not because, too much against it. yeah, not too much against. You because hold back. At some point of time, when it comes to the original or the taught biology that we have. मतलब जो notion है societal notion Societal notion कह लो, और we have been taught the same from the start. So अब, like, for us to be okay with it. Yeah, because like we are approximately 24-25, right? Around this age. And like till our college time, this was a trend in the US, but it wasn't too much spread in India. Even if it was there, because relationship was not legal at that point of time when we were in college, right? Yeah, so 377 ही अभी exactly, right. 377 से पहले तक you don't even talk about it because it's illegal भी है. Like वो करना illegal है, but बात करना it's not acceptable to most of the people. So I guess हम लोग का जब तक वो maturity period start like almost end होने वाला था, उसके बाद when this kind of like is all over the internet, right, that's when obviously we know more about it, more pros, cons, everybody's debating about it. तो वो उसके बाद जब वो सबको चल रहा है, and then I kind of was okay with it. कि I don't have a problem because it's not none of my business. right, of course. It's your thing. Whatever you do is your part. But yes, when it comes to marriage, then the old biology comes into picture, and it's like, okay, that's fine, that's your business, not a problem. But what about if like if what we were taught was right? So natural biology is changing, which obviously two men can't have a child, or even two women. Right. But like the whole base of that marriage ritual, it's defeated entirely. Or what you can say is like after this, maybe it's gonna be rewritten in a particular way. Marriage की definition change हो Exactly. गई. So it's like I am fine with it because marriage is something that two people have to bond in, Right. and they have to decide for it. Right. So that is where I am fine. But yes, somewhere the change of that entire base might take time for me to get back to the complete for thing. But that is the only thing that's holding me back right now. True. पर सही बात है यार, मतलब हम जैसे एज अ सोसाइटी तुम्हारे लिए बहुत नया है. हाँ. मतलब और लोग जितना भी बोले यंग लोगों का राज है, एंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग राइट नाउ. बट पहली बात तो यंग लोगों की चल नहीं रही. हाँ. ठीक है, अगर वो लोग कोई नोशन लाना भी चाह रहे हैं तो चल ही नहीं रही. ठीक है, दे आर नॉट इन पावर. और दूसरी बात, यंग पीपल में से भी एक मैक्सिमम चंक वो है जो स्टिल इज रूटेड in whatever was there. Exactly. Right. तो on a societal level accept करना मुश्किल है. मुश्किल, मतलब to state a fact. Yeah. क्योंकि मतलब Accept करना मुश्किल हो सकता है, but don't think anything is bad in it. No, नहीं, that's bad what I बात said. है ना. I don't have a problem in it because it doesn't involve me, it doesn't harm me, or it has nothing to You do don't with have me. to look at from a personal perspective. No, you need to look at it from a societal perspective. If you are particularly if the judgment is about legalizing it, Yeah. right? So then it is not from a personal perspective. True. Okay. So society का acceptance is also a part of it, right? So constitutional right है तुम्हारा हाँ. living in the free world that you can choose your lifestyle. True. And marrying someone is a lifestyle choice. Exactly. So बट आई फील जैसे तूने बोला सोसाइटल है या पर्सनल है, मेरे को लगता है कि ये पर्सनल है. मैरिज से पर्सनल तो कुछ है ही नहीं. Exactly. है ना? तो जैसे वो नहीं बोलता कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. हाँ. सेम जस्टिफाइज हेयर. True. कि भाई मैरिज से पर्सनल कुछ नहीं है, एंड यू हैव नथिंग टू से बिटवीन टू पीपल, राइट. Exactly. free will, no? हाँ, तो और Give it here, take it somewhere और else. वही है ना कि मैं कुछ क्रिटिक्स का आर्गुमेंट सुन रहा हूँ जो बोल रहे गलत है. तो वन गाय जस्टिफाइड है कि सो बी इट. क्या तुम सिर्फ क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी सोसाइटी के लिए गलत है, क्या तुम एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को जो कि अब बहुत ही एक्टिव है एंड एवरीबडी इज ओनिंग अप टू इट, उनको तुम इस चीज से परे रखना चाहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में. यू आर जस्ट गोना लिव अलोन ऑल योर लाइफ, है ना. तो मतलब क्योंकि मैरिज इज जो भी हम बोले इट इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. It is good from that perspective also. हम movies में भी देखते हैं. You would have seen that आयुष्मान वाला movie. Yes. Shubh Mangal Saab. Yes. The guy decided. He gave into it कि I'll marry a girl and then live my other life. Right. Yes. Why to go through so much, right?
it's kind of like an open marriage in the end. Exactly, and because of this, like I live another life. So I don't remember it was a video or some web series where the guy and he was around mid 50s, around 60s. That was the age range. Okay. And this guy was gay. He was aware of it the entire time. He spent around 20 years in his marriage Right. without maybe not a lot like exploring that fact or going with it, Or, because or suppressing it. yes, it was just suppression, nothing else. And the way that it comes out when the person realizes, and that was something that came after legalization of Article 377. Oh. So that was the part where I guess somewhere near that part it came, the video came out, which was kind of like, that was the main purpose of that video, that obviously people who have been oppressed for so far are like, they have a voice to it. That is the thing. And like he said, it's from a personal perspective more, because if suppose we three are sitting here, Right. you are fine with it because it's their personal matter, you are fine with it, I'm fine with it. But will just maybe three of us and the entire population being against it, will there be a change in society? Because it has to come from a personal perspective, because as a society as a whole, so भाई ग्रुपिज्म आ जाएगा ना एक पॉइंट के बाद कि हाँ भाई तुम्हें पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद, मेजॉरिटी माइनॉरिटी तो Exactly. है ना डेमोक्रेसी. हाँ, ट्रू. बट उसके बाद फिर आप सोसाइटी नहीं चेंज कर रहे ना, फिर वो पर्सनल, उस पर पर्सनल पे ही बात आ रही है कि वाई आर यू नॉट सपोर्टिंग इट, मुझे पसंद नहीं है. बट मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तूने बात की ना सप्रेसिंग की, हाँ. और वो बंदा ऐसे क्लोजेट में जी रहा है Yes. इतने साल तक. बट मैं बोल रहा हूँ जैसे आई हैड एन एक्सपीरियंस इन माई कॉलेज, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत ही ऐसे प्रो एवरीथिंग, प्रो लिबरलाइजेशन, बहुत ही लिबरल कॉलेज जिसको बोलोगे ना, तो मतलब JNU का कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे फुल ऑन. ठीक है. तो मतलब ठीक है, इन देयर वे दैट इज गुड. बट व्हाट हैपेंड इज कि हमारे कॉलेज में एक LGBT कम्युनिटी है बहुत बड़ी. ठीक है. जो मतलब दे वॉइस देयर ओपिनियंस एंड एवरीथिंग, होल्ड डिबेट्स एंड एवरीथिंग. तो वन ऑफ माई गाय फ्रेंड्स ही केम टू मी कि आई सपोर्ट इट एंड ऑल. ठीक है. आई एम ओके विद इट एंड एवरीथिंग. तो उसने बोला ब्रो बट कैन यू इमेजिन इफ वन ऑफ अस वुड बी इन दैट पोजिशन. मतलब इट इज स्टिल सो नॉट ओके भाई. मतलब हाउ डू यू फाइंड द गट्स टू टॉक टू योर पेरेंट्स लाइक दैट. Exactly. मतलब मैं सोच भी नहीं सकता. यू वुड फाइंड सम स्ट्रेंथ हियर एंड देयर. बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी के टाइम पे मैं जितना भी वोक बन लूँ अपने घर पे, जितना भी तुम अपने माँ बाप से आर्ग्यूमेंट कर लो, है ना, बट तुम ये कॉन्वर्सेशन इज द डिफिकल्ट वन. Coming out of the closet is like the Exactly. difficult, नहीं most मैं कह रहा हूँ difficult एक बार को thing तुम्हें possible. पता है, हाँ, तुम्हारे फ्रेंड्स को पता है, सबको पता है. योर सोसाइटी 90% ऑफ योर सोसाइटी knows about it. है ना. जैसे कितने लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पे रेनबो है बट देयर फैमिली डजंट नो इट. Exactly. तो आई एम सेइंग कि जो अपनी फैमिली से बात करना है भाई कितने लोग तो रेनबो है जस्ट बिकॉज उनको लगता है ट्रेंड में. Actually. मेरे कजन ने लगा रखी थी भाई. बट और एक चीज नीचे ही हिम लिखा हुआ है और ऊपर रेनबो लगा रखा है एंड ही इज इन 9th. बोली ना मैंने तेरे को, मेरे को ही बोला कर. बट ब्रो ही इज इन 9th. तो मैंने उसको बोला ब्रो डू यू नो द सिग्निफिकेंस. मतलब इट्स ओके इफ यू आर डूइंग इट, बट तेरे को पता है इसका क्या मतलब है. Exactly. उसको नहीं पता था. And बस ट्रेंड में वो था ना ninth जैसे में है ना? ग्रोइंग हाँ, अप. ninth. Sorry, हाँ. but like that is just one kid, okay fine, 9th class है, नहीं पता. But there were people like after that ना, जब वो लीगलाइज की बात कर रहे थे, तो उसके बाद रोड पे जैसे जो टीम्स हैं और व्लॉगर्स वगैरह हैं जो इंटरव्यूज वगैरह लेते रहते हैं किसी के भी, दे टुक इंटरव्यूज ऑन सम कॉलेज वाली स्ट्रीट पे, like too many colleges in one lane, and मैक्सिमम लोगों को नहीं पता. दे नो इट्स अ ट्रेंड, but even people coming at that level, they're still not aware of it. So that is actually a problem. And the family thing that you said, at the end you have to go back to the family. Society में बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है because वो एनवेलप पुश करना ही भाई दिस इज अ Very difficult task. जॉब. हाँ. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे को लगता है कि जैसे हमने शुरू किया था ना उससे कि दैट यू आर नॉट टू मच अगेंस्ट इट. Exactly. तो इस बारे में व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि अभी भी हमारे जनरेशन, मतलब मैं अपनी जनरेशन की बात करूंगा, ऊपर वाले को तो हमें सच्चाई पता है ना. हाँ. तो हमारी जनरेशन में भी वो होल्डिंग बैक है. Yes. व्हाट डू यू I थिंक, मतलब believe so. है ना. है. तो पर क्यों है, मतलब आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ इट. यार that totally to me that totally depends upon your perspective. In the end, are you okay with it? And there is also a thing na, matlab you find the idea, the notion of it very opposing. If you somewhat are inclined, वो जैसे बोलते हैं ना homophobe वाला scene. So why are you so uncomfortable of
you know, intimacy. हाँ. I mean, platonic guy friendships होती हैं, right? I would do anything for my brother or something like that. हमारे पास ना एक वो है, मतलब एक you know, when you're growing up, people are like, dude, why you being like a girl, ये वो एक बचपन से ना टैबू चीज है to talk about your feelings being a guy or something like that. क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? Exactly. Right. उसका that has to do a lot with this, you know, hold back. कि they are like कि if I openly support it or if I openly, you know, even think in that direction. So But वो धीरे-धीरे overcome होता है. I kind of noticed this one thing college में ना, you know, our college had a lot of people, lot of students, and Which college did you go to? Amity. Let's not. Yeah. So there were people who belong to a particular community, like a couple of communities, and their community. Like, are you talking about LGBT? No. The community, as in general communities that we have, not the LGBT societies exactly. So there were people who were completely attached to that grassroots level of the old, or like the previous version. And why are they like that? Because they बोल दे ABVP. नहीं. Bro, Amity was cooler than that. Actually, Amity was way cooler than ABVP नहीं था? that. There was nothing, no politics. No politics. Yes, no elections, nothing. बस politician के बच्चे होते हैं. हाँ, exactly. But सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि there was like you would say कि कोई हमारे बहुत cool था हमारा college. There would be nothing. But still you are talking about the same people. जो दूसरे college में ABVP में होते हैं. True. But so people are same भाई, वही तो बात है. Yeah. That's a fact. But वही है ना कि अब वो अपने कल्चरल रूट से इतने हो गए. Why? Because अपब्रिंगिंग वैसी मिली है. हमारे पास ऑप्शन ये, हमें ऑप्शन लकीली मिल गया कि ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ इट. थोड़ा हमें पढ़ के समझ में आती चीज़ें. जिन लोगों को समझ में आती हैं बट दे आर स्टिल लाइक कि यार नहीं यार, जो घर वालों ने एक बार सिखा दिया ना वो सही है. बिकॉज एक पॉइंट के बाद यू बिलीव योर पेरेंट्स अ लॉट. टीनेज एज में हेमंत से भी डिस्कशन हो रहा था कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स कर लो, कुछ भी कर लो, बट आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ यार बात तो सही कह रहे थे वो. और जवानी में तो कुछ भी मुंह से निकल जाता But है. that could not be true for everything. Not everything. In certain No. things it is. और for your identity तो of course not है ना. हाँ, exactly. ये तो भाई. Who else can define how you feel? But at the same time, dude, this discussion is going bizarre. I mean, if you think about the Indian perspective, यहाँ पे मेरे को लगता है कि Indian context में specifically काफी चीजें ना सही चल रही हैं. When the right talks are happening, right topics are being discussed. I mean, just build a parallel to a developed country. I'm talking about America. Oh no. Dude, bizarre shit is happening there. भाई वही. I identify as shit. I'm shit today. Exactly. Well, do I'm your on your joke, table, bro. Do your joke, man. You identify as a what? Do your joke, man. Do it. करता क्यों नहीं है, bro? ओह, खराब ना हो जाए यार. इतना दे दिया वैसे तो. premise. Exactly. पूरा. I identify as a trans, and my pronouns are Parent. parent. Hence I'm transparent. Because nobody can see through me. Exactly. But anyhow. This is going on. हाँ, but Yeah, I जो told भी you. है USA में तो अलग ही डिस्कशन चल रही है. बट इंडिया में I listen to one person जिसके दो पर्सपेक्टिव है. ठीक है, एक Okay. बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को. उसने बोला कि दो तरीके के होमोफोब होते हैं. एक होते हैं पहले जो यार मेरे को ये वाला ना बहुत सही लगता है. तो when people start like this ना, दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में. और फिर लास्ट में बोलते हैं दोनों चीज़ें. क्योंकि तुम पहले वाले से रिलेट कर रहे हो. हाँ ये तो मैं हूँ. फिर दूसरे वाले को बोलते हो हाँ शायद ये भी मैं हूँ, और दोनों चूतिया. बट एनी हाउ उसका कंटेक्स्ट ये है कि वो बोलता है कि पहले होते हैं जो Let's start again ना, काटेंगे रील. हाँ दो तरीके के the guy homophobe. said कि there are two kinds of homophobes. ठीक है. One is majority of the people of the younger lot. Right. ठीक है. So the first one is who are scared of the LGBT community. Right, ठीक है. okay. The men. ठीक है. क्योंकि they like कि अगर मैं इनके साथ सेम रूम में होऊंगा, मतलब हाँ. that is the fear. Exactly. है ना, that is the societal notion कि मैं सेम कमरे में होऊंगा मेरे साथ तो क्या हो जाएगा. हाँ. ठीक है. मतलब तुम में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है भाई, पर तुम ये सोच क्या रहे हो. हो जाएगा इससे ज्यादा ये भी हो सकता है कि लोग क्या सोचेंगे. हाँ, exactly. Because your friends might not be that comfortable, but you are a good friend to the person who belongs to that community. हाँ, वो मतलब मैं problem बोल रहा हूँ करता है. फ्रेंड नहीं, कोई राह random. चलता हुआ, बट उससे भाई हम एलियन की बात कर रहे हैं, मतलब इट फील्स लाइक दैट. एनीवेज गो But अहेड. anyhow, exactly. तो ये एक टाइप के होमोफोब है. द सेकंड टाइप ऑफ होमोफोब्स आर द वन
who realize, जब वो थोड़े बड़े हो गए, who realize कि they can't do anything to me, right? I have more power in the society, and then they start beating them and bashing them, or taking away their rights and everything. तो उसने बोला don't be any of the kinds. Exactly. There is one thing ना, जो the thing that he said कि what people might think, or if you are in the same room with them, even if that person is not interested in you in any ways, but एक चीज वही है ना कि maybe the lack of intimacy, I'm not sure if it's the right word to say, but lack of intimacy or understanding of that intimacy, people are afraid that what might happen to them. कि like तुम्हें नहीं पता सामने वाले का control है कि नहीं है. This is because this is a problem, like generally this problem is faced by women. के साथ भी होता है. Exactly. This is the problem because उनको नहीं पता. Same is the thing with the guys as well, in like if we talk about it in this context. तो वो एक प्रॉब्लम है बिकॉज उसके लिए फिर अवेयरनेस करनी पड़ती है. दीज पीपल वट एवर दे आर डूइंग लाइक होल्डिंग मार्चेस और ट्राइंग टू अवेयर लाइक गेट पीपल अवेयर, नथिंग रॉन्ग इन इट. इट्स अप टू यू देन. फर्स्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कंप्लीटली, देन टेक अ स्टैंड. इट्स अप टू यू देन. बट मैं बोल रहा हूँ भाई हम कितना वो आगे आ गए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में इंडियन मतलब द अपोजिंग आर्ग्यूमेंट इज कि इंडियन कल्चर में नहीं है. बट इफ यू लुक एट कामा सूत्र, एग्जैक्टली मतलब खूब भर के बातें हैं, महाभारत में बातें हैं. वेरी ट्रू. और पूरी हिस्ट्री में अलोंग द लाइंस हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर जगह kings or these people have these kind of relationships, right? Yes. There's a difference na, matlab when they are talking about religion, Hindu religion and all of that, they are just talking about an ideology or the perception of Hindu religion what they have. Exactly. They are not talking about history. So when we are looking at religion, I prefer to read it from the eyes of history. So we have been like sort of like an advanced society in terms of functionality, in terms of women rights, in terms of like equality in society, right? You go to the south because south, why I'm saying south is cities are preserved there. मतलब इतना invasion वहाँ तक हुआ नहीं. True. So you go there, most of the cities are named after the name of girls, right? The ancient ones. So I mean, you talk about that society, it was open. Of alternate lifestyles, alternate theories. स्पेशली जहाँ पे साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है. सो बीइंग इन सच अ सोसाइटी, आप कैसे आर्गुमेंट प्लेस कर सकते हो सेइंग दैट योर ओन रिलीजन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग सो? यार दैट इज द प्रॉब्लम ना कि यू आर ब्रिंगिंग इन रिलीजन, राइट? ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए एक पॉइंट के बाद. बट these people like he said, वो एक होता है ना, एक एजेंडा बना दिया और एक आइडियोलॉजी तुम्हारे पास ऑलरेडी सेट है कि ये है मेरा रिलीजन. बट वही है ना, पढ़ना किसी को नहीं है, टीवी पे सबको आना है. बट वही है ना, जैसे मतलब रिलीजन में भी ऐसा भी है कि कुछ बुक्स ने बहुत ही स्ट्रेट अवे बोला हुआ है कि दिस इज रॉन्ग. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव हर्ड, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है तो आई एम नो वन टू जज, बट मैंने सुना है कि मनुस्मृति में लिखा है इट इज अ क्राइम. ओके, ठीक है. मनुस्मृति में तो बहुत और चीजें लिखी हैं जो वही दैट इज द पॉइंट ना भाई. मनुस्मृति में तो 1000 चीजें लिखी है जो अभी भी हम कर रहे हैं, वो क्राइम है. True. है ना? लाइक सिटिंग इन शॉर्ट्स माइट बी अ क्राइम. एग्जैक्टली. एंड सिटिंग ऑन चेयर्स, हाँ, बिकॉज वो सी हमारा ना भाई, जैसे हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, कामा सूत्र एंड एवरीथिंग, तो देयर आर सो मेनी बुक्स दैट आल्सो स्ट्रेट अवे डिनाइज इट. ठीक है. जैसे इस्लाम तो डिनाइज इट फुली, है ना? क्रिश्चियनिटी फॉर सो लॉन्ग हैज डिनाइड इट. अब जाके द पोप हैज सेड कि हाँ ठीक है, ओके, राइट. तो अब मनुस्मृति, हिंदुइज्म में मनुस्मृति हैज टर्म्ड इट अ क्राइम, है ना? तो वही है कि मतलब व्हाट यू वर सेइंग कि मनुस्मृति में तो 1000 चीजें वो भी लिखी है जो क्राइम है. हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग एट कि जैसे मनुस्मृति में ना अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, तो इट स्टार्टेड डिफाइनिंग अनटचेबिलिटी एज ये ब्राह्मण्स का काम है, ये क्षत्रिय का काम है, एंड दिस इज शूद्रों का काम, राइट? Although in our culture it was that who practices weaponry exactly is a kshatriya, right? Even who that is your dharma is basically what you do. It's your business, it's your profession. True. So if you preach, then you are a pandit. So it was like that. The profession you practice is what you are. Exactly. So Manusmriti like made it into a caste thing. So from that perspective, if you're quoting साइट तो कुछ भी कर दो आप, लेकिन अगर आपका बेस मटेरियल थोड़ा सा फ्लॉड है, देन तो यू कैन नॉट. वही ऊपर से वही भाई वही है ना कि जैसे वी टॉक अबाउट कास्ट एंड एवरीथिंग, तो मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है. उसने बोला कि भाई
इमेजिन अ फ्यू सेंचुरीज और हंड्रेड ऑफ सेंचुरीज अगो, ठीक है, जब कास्ट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, बट इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, ठीक है, ट्रू, तो हाउ विल अ चाइल्ड लर्न अगर उसे किसी भी और ऑक्यूपेशन में जाना है? तो अगर कोई कंसेप्ट ही नहीं है इंस्टीट्यूशन का, यू नो योर कुल जो हम बोलते हैं फैमिली, दैट इज योर इंस्टीट्यूशन, दैट इज वेयर यू लिव, दैट इज वेयर यू ब्रीथ, दैट इज वेयर यू डाई, ठीक है, तो बच्चा वही सीख पाएगा जो उसके फादर कर रहे हैं, ठीक है, और उसके फादर मतलब और सेंचुरीज बैक जाओगे तो वो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है प्रॉपरली कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मतलब मेरे ख्याल से शायद उस टाइम पे ये ना हो कि पंडिताई बहुत अच्छी चीज़ है, बट इट इज़ जस्ट कि भाई तू ये काम संभाल, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल द आर्ग्यूमेंट आल्सो हेल्ड वन थिंग कि जैसे अब हम सोचते हैं कि जो सीवर साफ करना है या टॉयलेट साफ करना, जो हम बोलते हैं सपोजिटली शुद्रों का काम है, वो हम अब सोच रहे हैं कि दैट इज अ मीनियल जॉब। एग्जैक्टली। उस टाइम पे हाउ डू यू नो दैट इज अ मीनियल जॉब? उस सोसाइटी का क्या आउटलुक था वो तुम्हें क्या पता? तो दैट इज अ पॉइंट। जैसे मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांस्ड यू नो इकोनॉमीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया में द लेबर मार्केट इज टू गुड, ठीक है, द प्लम्बर अर्न्स मोर देन द डॉक्टर, या एग्जैक्टली, है ना। तो अब तुम उस प्लम्बर को बोले कि यू आर डूइंग अ मीनियल जॉब, यू कांट। And he's cleaning toilets daily per hour and he charges for it. Exactly. And not just Australia, I guess UK also has a similar way of like treating people in terms of jobs. यार एक चीज और है ना, पॉपुलेशन बहुत कम है। When you have Scarcity है। यार जो भी रिसोर्स स्कार्स होता है, human beings are also resources. So जो भी रिसोर्स स्कार्स होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ब्रो। तो वही है ना, अब इंडिया में you have like 1.3 बिलियन तेरे जैसे। पर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को कोई मिसकोट ना करा जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब आई सपोजिटली डू नॉट कंडोन व्हाट कास्टिज्म इज डूइंग टुडे, बट वो हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति ने वो काम सारा खराब कर दिया। मतलब अगर उस टाइम पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन जाते जो बोलते कि नहीं अब तुम एक दूसरे का काम सीख सकते हो, राइट, अगर वो सोसाइटी उस तरफ जाती तो हम कुछ और ही होते, बट सोसाइटी टुवर्ड्स द नेगेटिव गई मेरे हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक? मतलब यार हर चीज़ की ना मतलब इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक वक्त की नीड है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर वाला सीन होता है, मोरालिटी ऑफ द टाइम। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, मतलब इट वाज फिटिंग एट दैट मोमेंट एट दैट टाइम, मे बी इट्स नॉट फिटिंग नाउ। व्हाई इज द सेम थिंग दैट यू कोटेड, हमें नहीं पता उस सोसाइटी में क्या था, वो तो लिखा हुआ है ना। अगर हम वो देखते हैं ना, मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स व्हिच आर बीइंग डग, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो दे फाउंड द एंटायर लाइक सिटी प्लानिंग, सीवर सिस्टम्स, वाटर पाइपलाइंस, एवरीथिंग, बट दे डिड नॉट फाइंड अ सिंगल टाउन हॉल, a single institutional, a big building which can gather people. They did not find that. Right. So the point is, dude, the way you said, there are no institutions. Exactly. So the society is divided properly. Right. It is functioning. It is proof of it. But there is no institution. There is no proper. वही तो मतलब इंडस, and it's working out well for them. और जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी हमें प्रूफ्स हैं, तो मतलब जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं दे हैव डिस्कस्टेड द आइडिया कि देयर वाज एनी इनइक्वालिटी। उन्होंने बोला सारे जो हाउसेज है दोज आर सेम, एक कॉमन पेडेस्टल है, एक कॉमन शायद वो टाउन हॉल है या कुछ भी है जहाँ से अनाउंसमेंट होगी या कुछ भी होगी, बट देयर इज नो इनइक्वालिटी। मतलब महल नहीं मिला, महल इज द आइकनिक सिंबल ऑफ यू नो इनइक्वालिटी, तो महल मिला ही नहीं। So that's what it is, dude. Centralized नहीं है वो. It is so decentralized that this is handled by someone else, this is handled by someone else, and it's working out well. But if you're talking about decentralization, what मतलब just a thought. I don't know how true it is, but we have seen it now also कि if you're living in a family, the head of the family, suppose हमारे लिए हमारे दादाजी दादी, maybe they didn't have that town hall or maybe a centralized part because जो like जैसे जो हैंडल कर रहे हैं, सपोज वहाँ के जो बड़े हैं वो पूरा एक है, ठीक है, दे आर काइंड ऑफ ऑलरेडी डिवाइडेड इन इट कि सबका वो एक पॉइंट पे हमें बाहर से लग रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, बट जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे मे बी देयर इज सम सेंट्रलाइजेशन। यार बाबा चेन ऑफ कमांड तो किसी भी सिचुएशन में रहेगा ना। द पर्सपेक्टिव इज दिस, जैसे इंस्टीट्यूशंस वर टेकिंग डिसीजन ऑन योर पार्ट, आई मीन जैसे किंग्स लेते हैं, राइट, दैट वाज द, मतलब जो अभी ले रहे हैं दैट इज
मतलब डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट यू आर सेइंग कि चेन ऑफ कमांड रहेगा बट इट विल कंटिन्यू टू शिफ्ट टुवर्ड्स वन टू अनदर, राइट? तो दैट इज अ परफेक्ट थिंग, क्योंकि एक कमांडर तो हमें चाहिए ही, बट अगर वो अथॉरिटी शिफ्ट होती रहे तो दैट इज द परफेक्ट बैलेंस, राइट? तो मतलब वो एंशिएंट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि महल नहीं मिला, हाँ, तो देयर इज नो क्या बोलेंगे उसको? साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब मोनोपोली नहीं है किसी बंदे की, है ना, एक सोसाइटी में टुवर्ड्स मेकिंग ऑर्डर्स, डोमिनेंस बोल सकते हाँ, डोमिनेंस बोल सकते हैं। तो वैसा मतलब दैट कुड बी वन थिंग, है ना? बट कमिंग टू बैक टू द पॉइंट, वाओ, कमिंग बैक टू द पॉइंट Yes. कि अब जो भी है 377 है या फिर यू नो क्योंकि हमें इस पे ही आना पड़ेगा, तो जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, तो तुम्हें लगता है कि जैसे एंशिएंट इंडिया या इंडस सिविलाइजेशन है, तो उसमें भी मेरे ख्याल से प्रूफ तो मिले ही होंगे, है ना? हाउ कैन यू फाइंड अ प्रूफ? वही ना, वही Tell me. स्पेकुलेशन है ना, स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? कोई स्क्रिप्चर तो अभी तक डिसिफर हुई नहीं। एग्जैक्टली, बट एग्जैक्टली, सो अब आप यू आर टॉकिंग अबाउट अ मेंटल स्टेट आल्सो, तो वो कैसे आप कर सकते हो? हाँ, हमारी बहुत लिमिटेशन है व्हेन वी आर लुकिंग बैक, सो एंड इन फैक्ट आई सी इट फ्रॉम अ सिक्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो आज हुआ है वो पहले हो चुका है और वो बाद में भी होगा। ट्रू, तो अभी द वे वी आर डिगिंग आउट द पास्ट, someday we are also going to be extinct, and someday the next civilization is going to dig out us. True. So आज हो रहा है तो आई बिलीव पहले भी होगा। हाँ, और look towards the future also ना भाई। I mean, I'm looking at it from a statistical point of view. Okay. Everything happens in cycles, everything happens in periods. So what तो I mean, इकोनॉमी का स्टूडेंट है ना, लग रहा है। no, I am talking it from a नहीं, physics मैं वाला वैसे point बोल of रहा हूँ, view. इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा टेक अवे है हाँ, right. कि एवरीथिंग इज सिक्लिकल। ट्रू, तो from that angle, it's not hard evidence. Right. At best, it is a speculation only. So, but at the same time, अभी हो रहा है, पहले भी हुआ था, आगे भी होगा, वही सेम चीज है। सही बात है, जैसे वही है ना, जैसे अभी Better have a good pose so that next time then they find us. हाँ, man, true, bro. What the hell are they doing? Why did they have this? सही में। और मतलब ऐसे डबल ब्यूरियल्स वगैरह की भी मिली है एविडेंसेस ना। Yes. तो मतलब पीपल आर लाइक कि ब्रो कोई रिलेशनशिप रहा होगा फिर, हाँ, अब वो समझ नहीं आएगा भी क्या है कि मैरिज, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऑफ कोर्स भाई, ऊपर से मैरिज का भी कंसेप्ट था कि नहीं, वो भी कोई हाँ, प्रूफ नहीं है ना हमारे पास। हाँ, तो वो डबल ब्यूरियल कुछ केसेस में हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो रहा है ना। तो क्या वो जैसे अब मेजोरिटी है मैरिज, तब वो मिनॉरिटी थी, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, Oh fuck. that's a good point. That's a honor killing. हरियाणा में टिक्का बोलती है वो सही। हाँ, हरियाणा में होगी कि लड़की नहीं है, सॉरी एलजीबीटी की बात कर। Oh भाई, that's I heard a logic. I just want to share it because मेरे को इतना clarity नहीं है इस पे। okay. This person was talking to me about this that you know when in a society female are given less preference. क्योंकि मैं अभी ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ माइंडसेट, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। सो व्हेन इन अ बाइनरी हो गया ना, मेन एंड वुमेन, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तू जेंडर में नहीं घुस रहा। हाँ, मैं अभी जेंडर में नहीं घुस रहा। यस, सो अभी इन अ सोसाइटी वेयर वुमेन आर बीइंग ऑप्रेस्ड, करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओके। सो होता क्या है कि व्हाट यू फाइंड इज I cannot, if I'm not considering you worthy of my attention, and I only find a man worthy of my attention. Right. So I am more inclined to be closer to a man than a woman. There is also this. So this guy was talking to me about this. When this happens, your psyche is bound to believe that a girl doesn't understand me and a guy does. And in the end, what is love? You want to be heard, you want to be valued. So I mean, it's affection and all of that, security. I need a person on my highs and the lows. So और पर वो भी है ना भाई कि ये मेरे को ना थोड़ा सा वो वैसा लगा था, मतलब सरियल सा थॉट दैट इट could be true and नहीं, वो एक मीम नहीं है कि me and my best friend are going on a trip. What we do is on a roadside highway we have tea. On the mountains we have our sips of whiskey and everything. और वो बोलता है we were just a kiss apart from being in a relationship.
Black. So, मतलब what this is what you do with your friends also, भाई. You like this show called Black Mirror? हाँ, I saw it. So Black Mirror का ना अभी latest season का there was one episode. अभी चल रहा है वो? I have no clue, मतलब. It was like 2 years back. तो सारे latest. हाँ exactly. The मेरे को याद latest- है, last movie था. Latest का मतलब ये नहीं. Last one. Last one. Sorry. Yes. Okay. So उसका एक episode था which was about augmented reality where Yeah. people are going inside the game and playing it and all of that. So it was sort of like a Tekken का setup. Tekken खेली है? Tekken. हाँ. खेली है ना? हाँ. So that coin वाला game है. Yes. So Tekken वाला setup था and for example you and I are playing that game. Okay. So the other best friend, you know, what he did was he dressed up as a girl. They fought, they enjoyed the game so much. But during the game, they share an intimate moment. And looking at each other, and they were like, "Dude, this guy knows me so well." Yeah. वो वाला factor होता है ना एक. And now he looks like a girl also. The other one is looking at the same thing. Okay. So they started making out. And they started enjoying it to that extent that it was apparently cheating because they were all both in a relationship. Okay. So this is sort of like a cheating only. Yeah. You're doing it inside a game. There's no physicality involved, but emotionally, I mean, Yeah. you are in fact cheating. And what is it? It's your best friend, and no one mental cheating हो गया. and no one knows about it. You are just sitting on your couch playing the game. It's all happening in your head. Oh shit, bro. So that was because the show talks about a dystopian world. So वो मेरे को थोड़ा सा वैसा लगा था. And then this episode supported this idea which I just shared before this. That when you are finding someone worthy of your attention, you don't look at gender. I mean, look at people who are bisexual. Right. I mean, it is not their nature telling them. It is that whoever I feel closer to, Yes. I am not going to care about gender. Right? And that is, मतलब जैसे बोलते हैं ना, enlightenment होती है. That is sort of like another level altogether. True. I mean, I don't believe in this. I'm better than this. I am on another level Yeah. only. बट मेरे को बुरा उनके साथ लगता है जो बाइसेक्सुअल लोगों के पार्टनर्स होते हैं. Yeah, man. Yeah, I mean, sense it's of- already tough being insecure of other guys. वही Do तो. I have to look out for girls also? हाँ, मतलब सुपीरियर जेंडर से भी मेरे को इनसिक्योर होना पड़ेगा तो Exactly. फिर तो ब्रो मैं नहीं होना चाहता. But there was मतलब a girls are obviously better Yeah. looking than us. तो I heard this. आर्गुमेंट खत्म है भाई. True. I heard this like पता नहीं कितना true है. Stat kind of था. Generally in that bisexual like orientation, like specifically it was for women. That women tend to be with women only. Like मतलब not only as in they're more inclined towards women as compared to men. हाँ, अच्छा. So not sure but yes वो यार point वही है, दो लड़के मिलते हैं तो वो WWF करते हैं. तो मतलब तेरा वाला एग्जांपल भी वो टेकन खेल रहे थे. Exactly. मतलब सेटअप तो वही है. उन्हें बीच में पता Guys- चला fuck this could happen. Guys are very destructive, man. है ना, बट गाइस पता है क्यों? क्योंकि लाइफ फक हो रखे होते हैं ना. पता नहीं, वो भी भाई सोसाइटली है ना, वो भी क्या है. हाँ. साइकी है भाई सब कुछ. खुद सोसाइटल नहीं है, जो है हम बॉर्न बर्थ से हैं. हम बेस्ट है, सोसाइटी ने खराब कर दिया हमें. बट कमिंग टू बैक टू द पॉइंट, हम लोग अभी वो बात कर रहे थे वेलकम टू माय सब्सक्राइबर. सरप्राइज टू माय सब्सक्राइबर गाइस. लाइक टू माय क्या, लाइक टू माय शेयर टू माय कमेंट, ऐसा कुछ भी कर कुछ भी. बट एनी हाउ हमने एक और न्यूज़ पढ़ी है जो कि है कि ट्रांसजेंडर्स को बैन कर दिया Yes. फ्रॉम वुमेन स्पोर्ट्स. yes मतलब पीपल हु हैव in बिकम US, वुमेन. no? women हाँ तो वो तो सही है. I support it. completely I mean- in support. Reason being, ठीक है, there have been instances where a game was organized just to show that there is some difference between a man and a woman playing the same sport and being at the same level in their maybe gender. So there have been like I guess there was one game for lawn tennis that happened. Okay. And उसमें clear दिख गया था कि what exactly has happened. Results were clear. But अब वही है कि this woman who trained her entire life, built that physique, mental strength, everything, has reached the top. Now she's competing against a person who who identified as a male, who had exactly all the required genetics, DNA or whatever is required when you become a man, or whatever DNA information that you guys have.
So out of the blue, or maybe this person is like, no, I want to become a transgender, and then that person comes into the game. It's like disrespecting the person who's actually made an effort to be in that league. So that is a like discrimination, you can say. So, and plus second thing is being in that environment. There was another debate that was happening because when like you are in locker room, एंड ठीक है इंडिया में आई एम नॉट श्योर कितना वो एक ओपननेस है, बट जनरली बाहर यूएस में आई डोंट थिंक सो देयर इज दिस शाइनेस कि हाँ देयर आर ओपन लॉकर रूम्स दैट पीपल कैन टेक बाथ एंड चेंज ओवर देयर, राइट? हाँ भाई वो मेरे को बहुत ही अनकॉमन लगा Exactly. था पहले जब हाँ. शुरू किए थे अमेरिकन शोज। तो उसके बाद अब द थिंग इज this was coming from an athlete only. She was a swimming athlete, I don't remember the name, and she was like, I am changing. For a woman, it obviously gets uncomfortable if she is changing around a person with a penis specifically, of course, obviously, हाँ. like even if you know that nothing is going to happen, but still you get वो एक environment environment बना हुआ है, safe so environment. that sometimes might be not a safe environment also, because there was a story, right, for the prison story that you were telling. So there also this has happened. Okay. So that is obviously not safe. You cannot compare the two because in this case it was a guy only. Yeah, it was a guy only. Okay. So like But at the same time yeah. uncomfortable होने वाली बात है तो यार वो तो होगा. फैक्ट है. तो अब वही है ना कि like on every single point, if you're considering the game, women did everything possible for her career. अब उसके बाद उसको वहाँ पे like uncomfortable situation में ready होना है for that game, तो वो एक पर्पस डिफीट कर रहा है ना. यू डोंट हैव अ प्रॉपर कॉम्पिटिटर देन. और पता है वर्स्ट क्या होगा अगर सीबीएसई होता है तो वो मार्क्स नॉर्मलाइज कर देता और वुमेन को एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता. दैट इज हाउ रिजर्वेशन आल्सो वर्क्स भाई. मतलब इंडिया होता तो वो कर चुका होता कि चलो तुम हार गए कोई बात नहीं, विल गिव यू 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. But देखो when we are talking about women not being like having faced discrimination because a superior gender in terms of performance, I'm saying. Right. So if they are competing with them, so that's why dude sports में होते हैं ना weight categories होती हैं. एग्जैक्टली. So even that is what, even हाँ. two different guys cannot do that. हाँ. But अगर weight category ही देखोगे, a transgender woman and a normal woman, Yes. right? वो दोनों सेम वेट कैटेगरी में भी Cannot compete. लेवल same नहीं है. जेनेटिक्स डिफरेंट है. Exactly. लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स. हाँ. सो अब उस पर्सपेक्टिव से तो होना ही चाहिए, करेक्ट. बट हाउ डू यू रिप्रेजेंट, आई मीन अगर हम ट्रांसजेंडर को देखें तो डू यू ऑल्सो थिंक इफ दिस इज राइट देन ऑल्सो वी शुड हैव प्लेस फॉर देम ऑल्सो. Like in yes. sports. So after There this should news, be a perfect category for them. Men ka sport, women, and then yes. transgenders. After reading this now, this was the exact same thought that came into my mind. Obviously, you can't neglect them. Obviously, you want them to be a part of the society as well. So why not create an extra category? You are creating inside a game different categories over there. बाबा पॉइंट ये है ना, कितनी कैटेगरीज बनाओगे? भाई कैटेगरीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स एट विच इट इज ऑर्गेनाइज्ड. तो ऑर्गेनाइजिंग अनदर इवेंट फॉर अ पर्सन, देखो हमने अभी डिस्कस कर लिया ना, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट पार्ट इफ अ पर्सन वांट्स टू बी अ ट्रांसजेंडर और लाइक इफ दे वांट टू गेट दिस सेक्स चेंज, राइट, वी आर नॉट अगेंस्ट इट, राइट. तो अब एक पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि हमें उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बट एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि हम उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट भी नहीं डाल सकते इन ऑर्डर टू make them feel कि yes they are not neglected or they are not discriminated against, they are a part of society. ऊपर से पता है सबसे weird बात क्या है, जो थर्ड जेंडर है ना, हाँ, वो एक सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी बात है. ऐसा नहीं है कि नई बात हाँ, है, ठीक है. मतलब these tags might be new, yes, ठीक है. LGBT B क्या TB surgery is also new, yes, है ना. But the third gender is not new. That has been happening. मतलब जो किन्नर्स हैं, yes, you know, तो वो है. बट अभी तक हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि क्या तीसरा जेंडर भी होता है. ऐसा होता है भाई, होता है. मतलब ये थर्ड जेंडर नहीं हो गया, वो हो गया एलियन हो गया. देखा नहीं हमने, लिटरली एलियन कंसीडर करते हैं. बट यार इसका एक आर्गुमेंट पता है क्या है, कि हमारी बुक्स में क्यों नहीं पढ़ाते ये सब वो सब. व्हाई आर वी टोल्ड दैट देयर आर ओनली टू जेंडर्स? एवरी साइंस बुक्स, एनवायरमेंटल साइंस बुक्स टॉक अबाउट देयर आर टू जेंडर्स. So I was given this article while asking this question by saying, dude, Hrithik Roshan has 6 fingers. Yes. Right. But generally we have 5. What will you teach your kids? We have 5 fingers.
will you also say that there are exceptions, some people have 6? No, you will say humans have 5 fingers. True. Right? But at the same time, dude, ये gender वाला concept should be taught. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ऋतिक रोशन हैज 6 fingers, right? हाँ. Everybody has 5. हाँ. वो एक्सेप्शन है, मान लिया. बट तुम उसको पीट पीट के नहीं बोल सकते भाई यू हैव 5. Exactly. This is a similar case that happens with people who are left-handed also. ये बहुत प्रॉब्लम है. But भाई इसलिए नहीं मार रहे थे उसको, कोई मिल गया मुझे इसलिए मार रहे. 6 उंगलियां तेरी, तू बास्केटबॉल ऑफ कोर्स तो अच्छा खेल सकता है. ग्रिप अच्छे है तेरे पास. But नहीं, जैसे हेमंत you said right कि I'm sorry I missed your point where You were talking about lefties. No, that was one just example that came out just like बट that. लेफ्टी पे मैं ऐड करना चाहूंगा भाई, लेफ्टीज के साथ मेरा एक प्रॉब्लम है. हाँ. ये क्या होता है? Yes. Oh, हाँ यार ये damn, bro. You extra want to angle see मेरे को it? समझ नहीं आता. You can like kind of भाई write it अगर like वो this. तुम्हारा सीट पार्टनर है ना, you are fucked. I have had one. You have no space on the बट desk. बाबा ऐसा होता है, देख देयर इज एन आर्ग्यूमेंट लेफ्टी वर्सेस राइटी वाला. हाँ. अच्छा, अभी भी मैंने राइट से लिखा थे. तो लेफ्ट वर्सेस राइट का ना आर्ग्यूमेंट जो है, हाँ. व्हाई आर सम स्क्रिप्ट्स लेफ्ट टू राइट एंड सम राइट टू Right to लेफ्ट. left, right. तो उसका एक आर्ग्यूमेंट है विच इज जैसे मिडीवल टाइम्स में देखेंगे और प्लस कौन से जियोलॉजी में सिविलाइजेशन है. तो अगर अरबिक देखते हैं हाँ. हम, हिब्रू, it was all in the middle part of the world where paper was not in abundance. They had stones. Right. Okay. So when you are carving stones, your mostly people are right-handed, right? हाँ. Dominant right hand होता है. तो chisel से जब आप काम कर रहे हो, हाँ. तो when you are doing like this, you have a proper vision of what you are making. So it is from an artistic point of view कि Yes. आप उसको लिख सकते हो, मतलब Okay. feasible है. हाँ. Left to right करोगे, your vision will be blocked क्योंकि आपने उधर जाना है. Right. So similarly, the places जहाँ पे आपकी scripts लिखी जा सकती हैं, you have that technology. वहाँ पे writing from the right, मतलब left to right is easy because when you are writing from left to right, you can see what it you're also. doing. So this was one logic. So maybe, Interesting, यार. maybe what you were saying, no? हाँ. कि कुछ लोग जो लेफ्ट से लिखते हैं वो ऐसे क्यों लिखते हैं. हाँ. मे बी टू हैव अ बेटर विजन बिकॉज सी इफ यू आर Yes. राइटिंग Blind आपको spot आ गया भाई. हाँ. एग्जैक्टली ब्लाइंड स्पॉट आने पे क्या होता है एक्सीडेंट होता है. बट फिर भी यार मतलब बहुत इरिटेटिंग है. पर वो जो भी तू जो भी कह ले, हाउ सो एवर यू जस्टिफाइड. अगर मेरा लेफ्ट हैंडेड पार्टनर है, मैं नहीं बैठ रहा हूँ उसके साथ. आई रिमेंबर ब्रो, हाँ. there was this friend of mine in school, brilliant genius boy. He used to score like the most, मतलब सबसे ज़्यादा सारे डाउट सॉल्व कर रहा है. And that too not like from that perspective, he was preparing for JEE. तो भाई लोगों के एक्स्ट्रा सिलेबस वाले डाउट सॉल्व कर रहा है वो बैठ के क्लासेस ले रहा है. All he used to eat was कुरकुरे in lunch. And then वो लिखता पता कैसे था, एक हाथ ऐसे and ये हाथ ऐसे and he's writing it. I'm like, what the hell, bro? I get it that you're solving like problems. If this is working out for you, good. But why? My question is why. पता नहीं यहाँ से क्या प्रेशर मिल रहा है भाई. ऐसे लोगों को डिफरेंट कैटेगरी में रखना Actually. चाहिए. बट भैया ना लेफ्ट वालों को फिर एक ही आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई हमारे लिए तो वो लाइक जैसे गेट अ क्लासमेट रजिस्टर हाँ. फॉर पीपल राइट हैंडेड इजी. लेफ्ट हैंडेड पीपल भाई लिखते लिखते उनकी यहाँ पे पूरे छप जाती हैं. हाँ. ट्रू. दैट इज वन आर्ग्यूमेंट दैट दे ऑलवेज प्रेजेंटेड. हाँ सही बात है. किसी से भी बात कर ले भाई पूरा वो कहते हैं यार आप हमारे लिए तो कुछ करो. दे आल्सो बिकॉज़ जो बाइंडिंग होती है वो ऑब्वियसली उस पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम ऐसे लिख सकते हैं पेन उठा के, हाँ. तुम भी लिखो ना ऐसे पेन उठा के. तुम्हें क्यों ऐसे लिटा के लिखना है? दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग ना. एक्स्ट्रा एंगल वाली बात है. मे बी देखो भाई अपन नहीं लिख सकते. मतलब वी डोंट नो हाउ द Exactly. बॉडी वर्क्स. हाँ. बट अगर हम बोलते हैं कि भाई इक्वल है लेफ्ट एंड हैंड, तो तुम ऐसे क्यों नहीं लिख पा रहे? Here, just tell me one thing. I'm not. या I'm तो not हो aware of सकता it. है क्योंकि वी राइट लेफ्ट टू राइट, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इट इज थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे. Possible. But Mostly I believe क्योंकि we are relying on our हाँ. optical senses. So हमें किसी ऐसे vision- व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो ये मिडिल ईस्ट वाली भाषा लिखता हो, है ना? वो अगर ऐसे लिख रहा है उसके लिए तो भाई जनरलाइजेशन. exactly. उसके लिए और टफ है भाई. नहीं भाई वो तो ऐसे लिख रहा है ना. ना देख पा रहा ना लिख पा रहा है. बट मैं बोल रहा हूँ इट इज इजियर टू गो अवे फ्रॉम योर Exactly. A lefty can write a Middle Eastern language easily. हाँ. Is what the argument is. हाँ. We don't know if it's We true. have no proof for it. Don't cite us on this. सच में. वैसे तो that is general advice. मतलब never cite us on anything. True. Right. Until Who now. knew the Middle East people are the most left?
Oh damn. मतलब पॉइंट है भाई, थितकार है लड़के. लेजेंड भाई. और सोच मिडिल ईस्ट पीपल, मतलब उन वो तो राइट के सिंबल है भाई. दे आर द मोस्ट लेफ्ट. मतलब इवन द स्क्रिप्चर इज गोइंग लेफ्ट टू राइट. Dude, the mummy started looking even sad now. Mummy is turning towards right. She's trying. But anyhow भाई, और क्या है हमारे पास बात करने को. But मुझे भाई ये कॉन्वर्सेशन बहुत सही लगी, क्योंकि हमने मतलब द थिंग इज कि सोसाइटी में LGBT वाले लोगों को अलग माना जाता है. हाँ. हमने सारे उन बंदों को अलग कर दिया जो हम अलग समझते हैं. हमने LGBT को इनकलकेट नहीं किया. हमने कहा लेफ्टी भी खराब है, इनको भी निकालो. बहुत बंदा पढ़ रहा है, उसको भी निकालो. Right. Right. But just thought, but right वाला जो right है, मतलब Right वाला right है. that you are right वाला right. As in right-handed and right. Right वाला है ना. So who came up, like ठीक है, right hand से लिखना ठीक है, वो right left directions की वजह से. But you are right वाला जो like the word that obviously sounds similar, spells similar. कितना समझा रहा है भाई. बात हो गई है. राइट वाला राइट, यू नो राइट जो आ रहा है. मैं कह रहा हूँ भाई, इसके बाद मैं बहुत लेट डाउन करने वाला हूँ. मेरा बता, we are listening. ये तो हो गया भाई. राइट क्या है? एक तो राइट हैंडेड है, ठीक है. वन इज दैट राइट direction. आइडियोलॉजी एक है, हाँ. ठीक है. Ideal. एक है दैट यू आर सेइंग द राइट थिंग. The metric of being correct. हाँ. ये सही बात है. The metric of being correct. Yes. We're talking about that. हाँ. Yes. तो वो है. एक जैसे हम लोगों ने राइट हैंडेड की बात कर ली, ठीक है. वो डायरेक्शंस की बेसिस पे कर दिया. राइट विंग मतलब इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राइट. भाई पूरा हमने एस्टैब्लिश कर दिया, फिर ये बेसिक से शुरू कर. इसको कह रहा है कि आई वांट टू राइट इन माय ओन वर्ड्स. ये समझ ही नहीं पा रहा कि क्या गिवन है भाई क्वेश्चन. ओहो. भाई गिवन वैल्यूज लिख चुका है 5 बार. पेपर भर रहा है फालतू के. ये सब कट रहा है भाई, टेंशन मत, ये हम अपने पास रखेंगे. विल यूज इट इन रील्स. बट हाँ बता. राइट है. हाँ राइट. तो यू आर राइट. बट राइट बट अच्छा चलो जनरल क्वेश्चन कि आइडियोलॉजी वाइज राइट एंड लेफ्ट आइडियोलॉजी, हु डू यू फील क्लोजर टू? क्योंकि आई होप कि हम तीनों में से प्योरली राइट प्योरली लेफ्ट कोई भी नहीं है ना. तो और देयर आर ऑल्सो टू और 3 कंसेप्ट कि आप सोशली राइट हो, इकोनॉमिकली आप लेफ्ट हो, है ना, और वाइस वर्सा. तो वैसा मतलब व्हाट इज योर आउटलुक टुवर्ड्स दिस? मतलब वी हैव नेवर डिस्कस्ड इट, तो मैंने सोचा I would love to have a discussion about this. तो बताओ संक्षिप्त में बताओ. यार देख, अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हाउ टू डिफाइन इट, बट इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली अगर मैं बोलूँ, आई एम कंसिडरिंग लेफ्ट टू बी लिबरल एंड राइट और टू बी ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव, राइट? कल्चरली नॉट इकोनॉमिकली. हाँ करेक्ट. सो उस पर्सपेक्टिव से आई बिलीव आई एम समवॉट स्लाइटली लिबरल culturally, but I mean slightly, I said. I mean I'm not very here because in some ways I am very rooted. That's the thing na, like the question like that what like he's trying to ask is which part do you like the most, like where your interest, मतलब तुम्हारे प्रिंसिपल्स जो भी एथिक्स तुम्हारे भी है, वो तुम्हें कहाँ लगते हैं, कहाँ ज्यादा क्लोजर है, रिलेट ज्यादा कहाँ करते हो? यार मेरे को दोनों जगह मेरिट्स दिखते हैं यार. मतलब मैं खुद के लिए ही ये डिफाइन नहीं कर पाया. वही है ना, बिकॉज लाइक उसने पहले ही बोल दिया कि none of us are completely towards right or completely towards left. Right. चल let's make it more productive by talking about why I think I'm slightly left. ठीक है, फिर I'll hear your. So अभी अगर मैं राइट का देखता हूँ तो I see a lot of things which are very restrictive. From that sense that you do not have a free will. It makes me feel that you do not have a free will. Right. But I would love to have that as a species. It's my it's the only thing that sets me apart from the others. So I don't want to lose that.
Right. and at the same time left में a lot of things makes no sense also to me. True. So नहीं प्रिंसिपली बता, ये नहीं कि जो अभी सोसाइटी में चल रहा है अभी तो बहुत ही शिट चल रहा है। Principally बता ना, अपना ideal, हाँ। लेफ्ट मेक्स मोर सेंस है ना, मतलब राइट आल्सो डज, पता नहीं। you go about it. तू बता मेरे को अपना पर्सपेक्टिव. पर इकोनॉमिकली बता Come उससे back to पहले। this. Let's define it as at first. Yeah. Economically right and left क्या है? इकोनॉमिकली लेफ्ट वुड बी सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, टुवर्ड्स दैट। हाँ, मतलब Where- सोशलिज्म वुड बी सेंट्रल राइट, सेंट्रल लेफ्ट, देख एंड सोशलिज्म वो हो कम्युनिज्म जाता वुड बी एक्सट्रीम लेफ्ट। हाँ हाँ तो सोशलिज्म वो हो गया जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है वेयर द गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द यू नो Yes. मिक्स गवर्नमेंट है, and then communism is where nothing is owned by any person. एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ exactly. And then what would be the extreme right? एक्सट्रीम राइट विल बी एक्सट्रीम, पता है क्या है, मतलब इट्स अ हॉर्स शू स्टेटमेंट, हाँ. क्योंकि एक्सट्रीम राइट इज Exist नहीं आल्सो द करता. सेम, हाँ. नहीं आल्सो द सेम, क्योंकि इट इज फ्री मार्केट, हाँ मोनोपोली बनेगी पर मोनोपोली टूटेगी। हाँ इन अ वे नोबडी ओन्स एवरीथिंग। Hmm. तो द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, The argument itself becomes about either socialism or हाँ. communism or a capitalistic model. Exactly. तो यार फिर अगेन ना बैलेंस वाली बात आती है एंड बैलेंस इज अ ब्यूटीफुल थिंग क्योंकि पता है होता क्या व्हेन वी स्टडी एनी मॉडल क्या कितना भी केओस कर लो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आता है हाँ. दैट इज द बैलेंस और वही है कि वी नीड सर्टेन कैपिटलिज्म ऑल्सो फॉर ग्रोथ येट वी नीड सम सोशलिस्टिक मॉडल एज वेल विच इंश्योर्स दैट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज गेटिंग फेड एवरी डे Right. राइट, so we need that balance मिक्स्ड वाला जो इंडिया फॉलो कर रहे हैं mostly, हाँ. है ना। mostly yes Mostly yes. thanks to a couple of families वन फैमिली ओनली, बट ठीक है यार, क्योंकि मतलब वही ना यार ग्रोथ के लिए कैपिटलिज्म चाहिए बट प्रॉब्लम पता है क्या है मेरी आई नीड टू टॉक अ लिटिल अबाउट दिस जैसे अडानी वाला सीन हम लेके चल रहे हैं अडानी इज इनटू पोर्ट्स हैज हेफ्टिली इन्वेस्टेड देयर Yeah. एंड ही हैज टेकन ओवर अ लॉट मेनी सेक्टर्स तो lately the situation is so यार that LIC वगैरह सब तो उसे ही दिया है ना। हाँ, तो उसके सेक्टर्स और एक्सपैंड हो रहे हैं। हाँ but the point is relying too much on a single entity is the problem. वो मोनोपोली वो मोनोपोली की तरफ बढ़ जाता है ना फिर. Even if it is monopoly, I don't care about it from the you know this idealistic. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हाँ. टाइप। हाँ, मैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में से बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ रिस्क ऑन द इकोनॉमी एज अ नेशन Right. क्योंकि अगर हम अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रख रहे हैं हाँ. you meet an accident something happens to the company some bad calamity happens the entire nation is going to suffer that impact. जैसे अभी अडानी का भाई सेम थिंग हैपेंड। मैं उसी की बात कर रहा हूँ 15 कंपनीज लॉस्ट देयर वैल्यू इन दिस सेकंड्स, राइट? तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि हाँ, I मतलब understand. डोंट ये तो बेसिक्स है ना 101 है मतलब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन One बास्केट basket, सो right. डोंट डू दैट we have Sorry, Ambanis we have Tatas we have Bill Oh, Gates like just- sell the entire nation Yeah, to but that them is the thing don't ना. sell it to one person इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट वही ना अभी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही ना. इट्स लाइक कि ठीक है सेक्टर्स रिलायंस इज गेटिंग इनटू सो मेनी सेक्टर्स. मतलब Jio. जियो अब तो जियो है, वो रिलायंस नहीं है वो। हाँ चलो जियो. Look at what the hell man I did not like the name जियो। yeah हाँ, I mean ठीक है you can come up with a better name you I mean own so much बट जियो वो है ना जो तुम्हारी जुबान पे चढ़ते हैं। एग्जैक्टली. और उसका एक पता है अगर जियो टीवी, माय जियो, माय हाँ इंग्लिश नाम छोड़ दो सिनेमा, हिंदी में देखो जियो. हाँ. मीनिंग क्या ये है? जियो बच्चों. जस्ट लिव. फ्री इंटरनेट जियो। हाँ एग्जैक्टली भाई वही चस्का वही था ना कि हाँ बस जियो अब तुम्हारी लाइफ और कुछ बची नहीं है. यू आर but लिविंग. Reliance has always been the market disruptor यस. dude phones मतलब I remember the time my parents used to have those phones जिसमें इतने बड़े बड़े antenna with fucking 40,000 for a phone Yeah. which doesn't have a single game also राइट। and Reliance bought phones into the hands of the most like एकदम bottom of the food chain Yes. कि भाई इतना सस्ता फोन बना रहे हैं एंड उसके बाद टेलीकॉम के प्राइसेस डिस्टर्ब किए एंड उसके बाद लाइक दे हैव डन सो मच देन दे आल्सो डिड डिश वाला थिंग ना। हाँ. उसमें भी दे डिड जिस मार्केट में घुसे दे हैव डोमिनेटेड एंड हाउ फ्रीबीज वाले कॉन्सेप्ट से यस. कि भाई दे हैव डिसरप्टेड द प्राइस हाँ, एंड अब मार्केट को अडेप्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वन न्यू प्लेयर हाँ यार भैया ना वंस यू लाइक स्टार्टेड बिल्डिंग इट ठीक है तुम्हारे पास एक सपोर्ट हो गया बैक हो गई. अब यू हैव दैट मच लिबर्टी कि इतना मैं अगर उड़ा रहा हूँ ऑन फ्रीबीज राइट, भाई चस्का लगवा दिया वापस आएगा। वापस आएगा.
रिलायंस के बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ. सुनाओ. ये यार गमछा लेके बैठा हूँ. चाई मतलब I literally feel like it. right. Yes. But anyways, हाँ. so रिलायंस के बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ. धीरू भाई अंबानी के बारे में. I have coin heard story? this. Yes, the coin story. So I have heard I've never this. heard it. Oh, it's amazing. So the thing is, one Arab country, Dhirubhai Ambani was working as a cashier, Yeah. and what he used to do was Iran का coin था. What was that? The coin which was made of silver, actual silver. It was, I guess, either Iraq's currency or हाँ. Iran's currency. The coin was made of silver, so basically the coin was more valuable than the intrinsic value. Yes. Okay. So what he used to do was he used to acquire those coins Melt and melt them Yes. and sell it to the UK. UK government. And he made like lakhs of dollars. And then he came back to India and started. But that is the thing, right? So उसके बाद से that like जिस भी कंट्री का वो कॉइन था उनकी इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई थी because वैल्यू उनके भाई सिल्वर जा रहा है ना वहाँ से. No, it was not It was this basically that. drain हो रहा है, The drain thing- हो रहा है ना the भाई. thing was they lost all the coins from Exactly. that and they were wondering what's happening. The same thing was happening to India as well. Dude, India का you remember that 5 rupee का पुराना coin which was very heavy. हाँ. अब वो छोटा होता जा रहा है. पतला होता जा रहा है. उसका क्या सीन था, पिछला वाला जो मेटल था, हाँ. इट वाज निकल मिक्स्ड विद सम मेटल. सो उसका बिजनेस व्हाट यू पीपल यूज्ड टू डू वाज स्मगल इट टू नेपाल हाँ. ऑल इन बल्क, हाँ. एंड 1 5 rupee coin can make 10 razor blades, and every single razor blade is 2 rupees. तो 10 रुपीस बन गए. 20 10 10 रेजर ब्लेड्स बन जाते एक कॉइन 20 rupees का प्रॉफिट हुआ. तो 1 coin is making an output of 20 rupees. हाँ. So कॉस्ट भी हटा दो तो 15 तो बन गया. हाँ. तो अब उस हिसाब से दे स्टार्टेड स्मगलिंग दैट. दैट्स आरबीआई कॉट होल्ड ऑफ इट कि इकोनॉमी से सर्कुलेशन में कॉइन्स खत्म हो रहे हैं. सो दे स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस एंड ऑल. सो ये ना हर कंट्री ने फेस किया है. एंड आई विश यार गवर्नमेंट ना गोल्ड कॉइन्स निकाले 10-10 रुपए के. 10 रुपए के साथ में कितना गोल्ड आएगा तेरे पास? पर गोल्ड हो पूरा कॉइन बस 10 रुपए हो, है ना? हाँ, That way. फिर हम रख लेंगे थोड़े से एंड वी विल फिर नॉट. तो हमारे तक पता पहुंचेंगे भी. गोल्ड बेटा खत्म हो गया. आप ये लोग गोल्ड का बिस्किट खाइए. Yeah, I love that concept where while I was growing up, there was this soap brand called Lux, and they came up with this marketing strategy कि ये Lux soap के में से अंदर निकलेगा. हर सोप में yes. गोल्ड कॉइन है. यस. तो आई सॉ द एड. हमारे घर में तो मतलब सबके घर में होता है, ग्रोसरीज आती है एक दिन और एक दिन 10 साबुन आते हैं. इतने हाँ. सारे साबुन पड़े हैं वहाँ पे. मैं चाकू लेके pack गया. आता है family नो वाला. वन इन माय फैमिली नोज. मैंने सारे को वो काट दिए. एंड देन आई वाज लाइक गिवन अ decent lecture about it also. Not Only the lecture? Only lecture. फिर तो not सही. not the point. But that was that. सही है भाई. बट लक्स का ऐड भी बहुत ही जेन्युइन आता था भाई. हाँ. मतलब ऑल द लीडिंग हीरोइंस हाँ. हैव ऑलवेज वर अ पार्ट ऑफ इट. यस. अरे वो एक ऐड और आता था. आई मीन अ गर्ल रनिंग इन द फील्ड. आप आंटी हैं वो वाला. नो संतूर yes, भाई yes. दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग दैट लेगेसी अपने एड्स के और साथ. बंदी आती है और बोलती है मम्मा Fuck mama. ये आप मम्मा हैं. अब यार यहाँ पे फेमिनिज्म का टॉक मत डाल. हाँ बट फेमिनिज्म तो क्या ही है साले. ये एंटी एजिंग वाला है. हाँ. ओले वगैरह इसलिए चला रहे हैं भाई. ओले 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 भाई वी थिंक अलाइक मैन. इसमें होना चाहिए, गाने में यही होना चाहिए कि जब भी मैं कोई यंगर वुमेन देखूं तो मैं बोलूँ ओले कि ओले यूज किया होगा तभी शी इज लुकिंग यंगर. सॉरी टू. नहीं दिस वाज बेटर देन द राइट आर्गुमेंट ब्रो. एनीथिंग इज बेटर देन द राइट आर्गुमेंट. 4 बार राइट को समझा रहा है भाई. बट बता ना यार, हाँ, मतलब मतलब द नेशन वांट्स टू नो ब्रो. मैं और मेरे 3 फॉलोअर्स सुनना चाहते हैं. दे नो इट इनफ नाउ. बताना. नहीं भाई रहने ना? दे. नहीं. बट मैं बताता हूँ जैसे मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट राइट एंड लेफ्ट. मेरे को भी सेम लगता है कि लेफ्ट से मैं क्लोजर फील करता हूँ ऑन अ कल्चरल लेवल और राइट से ऑन अ दिस लेवल कि इकोनॉमिकली. ओके. तो एक बंदे का पॉइंट था कि मोनोपोली हो रही है एंड एवरीथिंग. ठीक है. इन राइट. तो व्हाट ही डिड कि एक जैसे ऑग्लियार्की होता है ना, हाँ. सेट ऑफ फैमिलीज कंट्रोल वन नेशन One वन nation, right, सोसाइटी. okay. ठीक है. तो
oligarchy exists everywhere. ठीक है, even if you think you are in deep communism, there will be an oligarchy. हाँ, ठीक है? you cannot avoid that. हाँ. तो in the modern world, communism में there are more, you are more prone to monopolies. The point is restrictions नहीं है ना. As in, You have built a society which doesn't recognize it. Your society is only going to talk about it. अब देख जैसे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं. We have certain rules of how to maintain it. Power. balance of power. Balance of power. Checks and Also, balances. exactly. Checks is the most crucial thing for a system. Right. तो जब सिस्टम है तो उसको मिसयूज करना करा जा सकता है. टफ है. तो वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना उसके बारे में. वही है. और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग याद है, एक कोई एक्टिविस्ट था, आई गेस ही वाज इन रशिया और समथिंग. ठीक है, तो पुतिन का जब कुछ इलेक्शन चल रहा था तो ही वाज रिलीज्ड. ठीक है, तो ही वाज आस्क्ड कि अब क्या तरीका है, तो उसने बोला नाउ आई विल फाइट विद दिस. ठीक है, मतलब हिज होल पॉइंट वाज कि मोनोपोली हो रही है, द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो उसने बोला ये होता रहेगा. तो उसने बोला कि इसका प्रोसेस क्या है भाई, ये कब खत्म होगा. तो उसने बोला भाई ये कभी खत्म नहीं होगा. उसने बोला ये लोग उसको चेंज करेंगे, देन यू विल सी कि देयर अभी भी चेक्स एंड बैलेंसेस कम है. तब तुम्हें लगेगा कि किसी और तरह से चोरी हो रही है. ठीक है, फिर तुम उसके लिए लड़ोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा किसी और चीज के लिए चोरी हो रही है. Dude, it is always like that. कि you become what you are fighting for. अभी देख ले यार, दिल्ली वाला गवर्नमेंट came on the point of corruption. And where are they now? Like been struggling. क्योंकि I'm not blaming the party or the ideology or like the leadership. We don't know. I mean, some leaders are doing such good work. Exactly. The point is simply that you become what you fight for, what you're fighting for. तो वो तो रहेगा ही. यार वही है ना, पावर में आके तुम्हें समझ आता है कि भाई कितना कुछ करना पड़ता है. Because अपने you've lost a lot of influential- time, lost of energy, बहुत कुछ वेस्ट कर दिया तुमने, पैसा भी बर्बाद किया है. जैसे एक बंदा है, वो उसने बोला कि अगर तुम्हें लगता है दुनिया का कभी भी भला हो सकता है और एक यूटोपिया बन सकता है, Nope. तो वो एक ऐसे बंदा बनाएगा, मतलब एक ऐसी पार्टी बनाएगी जिनको तुम अनलिमिटेड पावर दोगे और जिनको तुम नार्को एनालिसिस कर लो या जो भी कर लो, उनको तुम दिखाओ कि भाई इसकी कॉन्शियस से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और उस बंदे को अनलिमिटेड पावर दो, तभी हो सकता है, उसके अलावा हो ही नहीं सकता. उसके अलावा जब तक ये डर रहेगा ना, वुड आई बी इलेक्टेड द नेक्स्ट टाइम, तब तक nobody will do purely good. They will do some धांधलेबाजी. बट वही वाली बात है ना, मतलब उसके रिस्क ज्यादा है. बहुत है क्या बता यार, वही ना डिलेड काम बहुत है. हाँ. क्योंकि ठीक है, मैनिफेस्टो सबका आ गया 5 साल के पहले, फर्स्ट ईयर में. ठीक है, इलेक्ट हो गए तुम. राइट. अब भाई 4 साल तक यू आर शोइंग हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. 5वें साल में 1-2 छोटे छोटे टॉपिक पकड़े जो सेंसिटिव चल रहे हैं, बिल्डअप कंप्लीटेड, मैनिफेस्टो से हमने ट्राई किया, बाकी हमारा प्रोग्रेस में. तो वही है ना, आई फील कि ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इफ अनदर गवर्नमेंट इज कमिंग आफ्टर द चेंज ऑफ टर्म, राइट, ठीक है, जो पुराने वाले गवर्नमेंट ने मे बी अच्छा किया है और बुरा भी किया है, बुरा ठीक करने में टाइम लगता है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट. बट वही ना, 5 साल में ये भी ना होना कि मतलब तुम दिखाते दिखाते एक तरफ से शूट कर दो. तो वही ना, एक बायस क्रिएट हो जाता है कि हाँ भाई प्रोग्रेस हम सुन रहे हैं, कानों में हमारे आ रहा है प्रोग्रेस, कुछ ना कुछ करके. राइट. एट द एंड शूट अप किया, फिर वापस आ गए प्रोग्रेस पे. तो पीपल लाइक वेयर एवर दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ भाई लाइक कि अब नहीं हो पा रहा, वी डोंट सी एनी फ्यूचर. यार वही है ना कि मतलब इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, हाँ, तो मतलब द प्राइम रीजन दैट बीजेपी इज कमिंग बैक इनटू पावर, तो वही है कि उनका जो 2014 में मैनिफेस्टो था, वो धीरे धीरे टिक हो रहा है. एग्जैक्टली. दैट इज द ओनली एक्सेप्शन दे हैव, मतलब किसी भी पार्टी से. हाँ. क्योंकि किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि 10 पॉइंट दिए, 10 धीरे धीरे चेक हो रहे हैं, हाँ. इवन इफ इट्स टेकिंग टाइम. हाँ. तो मतलब दैट इज द प्राइम रीजन. मतलब हम ऐसे नहीं बोल रहे कि उनको आना ही चाहिए, मतलब एक मतलब one of the reasons is this. I totally agree. But one reason again is that कि India right now ना बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत है ना, right place at the right time. So India already was at a place जहाँ पे India started having a say in the global politics. And this current government, I'm not saying facilitated the process is what I want to say. Empowered it. Exactly. When have you seen India having such a good foreign minister who has a relevant experience as a diplomat? I mean, we have seen people who are not even able to present themselves. Yeah. But I like Shashi Tharoor.
This I guy, would like हाँ. Shashi Tharoor at that But he position. was but ना at some point I think. I don't remember that. नहीं? I don't know. हाँ, पता नहीं फिर. But वही है ना, हाँ, this guy is knowledgeable, no doubt about it. But हाँ, maybe he trying to ऊपर से change- पता है क्या सबसे बड़ा उसका रो क्या है? क्या? मतलब आई वाज हियरिंग एन आर्गुमेंट, तो उसने बोला कि मतलब उससे मुझे समझ आया कि इसको प्योरली क्यों चुना है. ही हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्लोमेट फॉर चाइना. So he has the most experience about China, and China is the biggest threat. and right now we biggest threat तो वही है, correct. हाँ, ये चाइना ही है. तो देन आई अंडरस्टूड कि ऐसा नहीं होता ना कि किसी येमेन के डिप्लोमेट को बोल दिया कि हाँ भाई. हाँ, obviously. हाँ, या फिर यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, मलेशिया के मतलब बोल the दिया. government is taking strategic decisions. हाँ. So that is something which I like, हाँ. and मेरा personal inclination towards it है वो इस reason से economy के लिए space program is like the Fuel. golden thing which is bringing in a lot of money. Right. So क्योंकि अगर जैसे NASA NASA का biggest revenue stream है जब वो commercial satellites launch करते हैं. Right. That is their revenue source. Same scene इसरो कर रहा है आज की डेट में. और रशिया ने हमारी जिंदगी में मतलब हमारे जितनी भी हमारी लाइफ रही है इंडिया की, तो रशिया ने वही तो करा है हमारे साथ. मतलब दे हैव लॉन्च्ड आवर सैटेलाइट्स. correct. है ना, राकेश शर्मा वेंट थ्रू देयर spaceship. Right. So my point is, no other government had such massive budgets for ISRO. ISRO के budget 2014 से पहले क्या थे और अब क्या थे? Just have a look at it. So I mean, the government is spending money on science. तो उस पर्सपेक्टिव से भी मेरे को सही लगता है कि हमारा ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव हुआ है, हमारा रिप्रेजेंटेशन इन साइंस इम्प्रूव हुआ है. व्हेन पीपल से दैट देयर आर जस्ट टॉक्स अबाउट पास्ट कि भाई 200 साल पहले ऐसा था, देयर आर सम पॉलिटिशियन्स जो हर पार्टी में ऊपर नीचे होते हैं, राइट? Let's not look at those. Every society has. Let's look at what are actually the things that are happening. मतलब on paper. तो उस हिसाब से तो सही लग रहा है. मतलब people also contest the point कि what's the need of spending money on the new parliament. But I believe dude, new makeover तो सबको चाहिए होता है यार. यार बस वही है, उसका टाइमिंग गलत थी. टाइमिंग गलत. कोविड But था. वही COVID बात के है time ना. पे हाँ, नहीं था. exactly. Otherwise it was a good idea. हाँ. Because इसके साथ भी वही डिस्कशन हुआ था कल. We were discussing क्योंकि about वो this. बिल्डिंग को Look at it, maintenance dude. चाहिए थी. Maintenance चाहिए G20 थी. summit, Yet- India हाँ. president. Exactly. और यार वही है ना कि अपना घर, अगर घर अच्छा नहीं, मतलब घर में अच्छा फील नहीं करोगे तो बाहर जाके हाउ कैन यू स्प्रेड दैट पॉजिटिविटी टू? Right. नहीं, Like नहीं. just one perspective. More than that, what I believe is you are going ahead in a very हाँ. strong manner, and you are on the verge of becoming a bigger name globally. When you do that, you need to have a good image also. Look at the current state of the parliament, discussions, Lok Sabha, Rajya Sabha. When you see, Yeah. it doesn't make you feel that this. I mean, समझ के देख. Compared to the countries close to you who are lower than your economy and all of that. If you are comparing your parliament to theirs, तू देख रहा है एक जो parallel draw करने की But कोशिश कर parallel रहा है. पता है क्या सबसे बड़ा? हाँ. In the history of our democracy, this is the government where we are having least number of arguments for bills. Yeah. They are not discussing anything. Yeah, man. They are just hearing delayed. हाँ. पता नहीं क्या क्या चल रहा है. और या तो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास हो हाँ. जाता है, और या फिर झट 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 खत्म. वोट तो मिल ही जाएंगे ऑफ कोर्स, तो डिबेट करने का कोई पॉइंट नहीं है. लोगों ने बोला पास 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 पास, स्पीकर ने 2 मिनट में साइन करा. और पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो चेक्स एंड बैलेंसेस करती है, मतलब वर्क इज दैट ओनली, है ना. तो इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी, हिस्ट्री नहीं बोलूंगा, बट इन फ्रॉम सिंस रिसेंट ईयर्स, this is the government where we are having least number of that Debates events and- yeah. events I am की not वो उनको sure. रेफर नहीं करा जा रहा. I'm not sure about it. Aware भी नहीं हूँ मैं इसके बारे में. नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ. मैं बता रहा हूँ स्टार्ट है, मतलब जनरल. बट अगर ऐसा है तो थोड़ा ट्रबलसम भी है, बट एट द सेम टाइम अच्छा भी है. अच्छा भी है क्योंकि देख न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया का हुआ था हैपेंड अंडर अटल बिहारी वाजपेयी. Yes. सो अभी उनकी सरकार थी कोलिशन, Yes. वेयर एक बिल पास कराने में इतना टाइम लग रहा है, वो सब यू नो द ड्रिल. सो अभी देख, अगर गवर्नमेंट एक बहुत सीक्रेट ऑप कंसिडर कर रही है हाँ. एंड द गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल, it becomes very difficult to have a global image and make decisions at the right time. quick decision नहीं ले पाओगे. हाँ, but the parliament's job is to discuss, भाई वही तो बात तो है. इंटरनल मैटर्स पे डिस्कशन होना चाहिए, नो डाउट. हाँ. एक्सटर्नल मैटर्स नीड्स टू बी क्विक. सो इंटरनल मैटर पे डिस्कशन बंद कर दिया है तो प्रॉब्लम नहीं, है. आगे दोनों पे कर दिया है. हाँ, मतलब कुछ कह नहीं रहे. External matters It तो also भी- shows the क्या बोलते हैं कि कितनी क्विक है हमारी गवर्नमेंट, हाँ. है ना. हो सकता है कि
they felt at some point कि you know this is slowing our country, this debate and everything, which to their credit होता रहा है हिस्ट्री में, है ना, कि वी हैव सीन कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स पास नहीं हुए, हाँ नहीं हुआ है ना, ड्यूरिंग द कांग्रेस टाइम वी आल्सो सा कि कितने बिल्स जो हैं जस्ट बिकॉज वन प्रोटेस्ट वो कैंसिल हो गए. तो उस चीज़ में अच्छा है ये गवर्नमेंट की दे आर क्विक टू डिसाइड, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दिया है, कुछ भी कर दिया, दे आर ट्राइंग टू यू नो बी क्विक अबाउट इट. बट एक चीज मेरे को लग रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाँ. कि 2014 में आई एंड उसके बाद लाइक आई वॉज ग्रोइंग अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वो एक लाइक मेरे को अवेयरनेस थोड़ी सी लेट आई, बट कॉलेज में आते आते ठीक है अवेयरनेस आ गई एंड देयर वी सॉ अ लाइक अ होल फ्लो ऑफ दैट यूथ कमिंग अप. दैट वाज द पॉइंट राइट कि हाँ यूथ इंडिया यूथ आगे लेके जाएगा, वो वाला पॉइंट चल रहा था. आफ्टर दैट ठीक है यूथ वाला पॉइंट आया, लाइक ही सेड ही वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. Plus the people the people he's choosing are people who are actually well versed with those departments maybe or with the topics. But पहले वही बात है ना कि like I'm not aware कि correctly वो लोग assign हो रहे थे उस department के लिए. तो एक जो क्विक टर्न अराउंड है मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज पीपल आर वेल वर्स्ड और सारे के सारे ऐसे नहीं है कि सब इंडिया में काम कर रहे थे. सो देयर इज दिस पॉडकास्ट वेयर द इकोनॉमिक एडवाइजर टू द पीएमओ केम एंड ही वाज not working in India, he was working outside in the US I guess with JP Morgan, but now obviously he is an Indian of an Indian origin. वापस आ गया, ठीक है, उसने US के साथ काम किया. He has seen a major chunk of it. Again a foreign minister, he has dealt with the difficult nations as well. बट मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इस बात पे मतलब पहली बात ये है कि एक तो यूथ आ गया है, हाँ, तो मेरे को लगता है ये टाइम इमेमोरियल से हो रहा है भाई. Okay. क्योंकि every new generation thinks there should be a change. Right. ठीक है, if you look at the independence movement India की, the youth was the most involved, right? True. They went to jail, they went to protest and everything. The oldies were only sitting and Yes. you know debating. That's how the society works, ठीक है, no? अब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी पे the youth were the most involved and मतलब जो हमारे टाइम पे youth politics है that is nowhere where it was before some. हमारा यूथ कर क्या रहा है वो भी तो देखो. नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को पॉइंट पे आने दे. मैं बोल रहा हूँ कि अब क्या हुआ है कि जैसे मैंने देखा कोई यूथ आ रहा है, अब वो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी क्विक है ना कि हमें लगता है दैट इज द जनरल आइडिया एंड दिस इज अ वेव. राइट. क्योंकि अगर जैसे हम कुछ भी सोचे, जैसे अगर तू ब्रॉड व्यू लेगा किसी भी चीज़ का, व्हेन वी थिंक इट इज़ अ वेव, मोस्टली इट इज़ अ फैक्ट कि ये साइक्लिकल है पहली बार, और या फिर ये होती आई है. जस्ट द प्रोपेगेंडा इज नाउ. ठीक है, तो मेरे को ऐसा भी लगता है क्योंकि यार अलीगढ़ एंड मेरठ एंड दिल्ली आर फेमस फॉर द यूथ पॉलिटिक्स, राइट? मतलब NSUI ABVP वो तब से चल रहा है. तो मैं बोल रहा हूँ यूथ इज नॉट न्यू फॉर एग्जाम्पल. तो वो भी हो सकता है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट है. तो उस वजह से भी हमें लगता है. और मतलब टू ऐड टू योर पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि यार वही है कि ऑफलाइन उन सर्कल्स में जाना बहुत मुश्किल है ना, और ऑनलाइन यू कैन बी पार्ट ऑफ योर द ग्रुप चैट, ट्विटर स्पेस एंड एवरीथिंग. तो वो इजी हो गया मेरे ख्याल से, है ना, व्हाट यू ट्राइंग टू से. बट वो ये ऊपर से, और संजीव सन्याल वाला वो मैंने देखा था पॉडकास्ट, इट वाज गुड. काफ़ी पॉलिटिकल हो गया. तो देख पुरानी बिट पे अगर हम वापस आए, इफ़ यू आर ओके विद दैट. सो पुरानी बिट पे वापस है ना, अगर ट्रांसजेंडर डिबेट पे, तो आई रिसेंटली वॉच दिस मूवी विच यू मेड मी वॉच, अलीगढ़. अलीगढ़ दिस इज मनोज वाजपेयी. यस, यू हैव सीन दैट? बहुत पहले जब आई थी उसके कॉलेज में देखी थी. हाँ, तो दैट मूवी वाज अमेजिंग. हाँ, आई मीन well shot, talks about the issue pretty well, and it was during the story was based during the time 377 got illegal. It was termed as criminalized हो गया. So technically कि उसके अराउंड का ही स्टोरी है, and how this person suffered and all of that. It was a good watch. I mean,
So I appreciate the suggestion. हाँ but वही है ना, that is the part वही हमारा starting वाला And also, discussion who था. knew that we are going to do this podcast? Exactly. Right. But वही है ना कि ये चीज वही वापस it is circling back. We are not against it because we have seen people suffer. तू तो circle back करता रहेगा भाई. But anyhow, But, our opinion on 377 on legalizing same-sex marriage is that go for it. And you have Go for it, invite us because we love to attend. अरे भाई weddings. मैंने एक आर्गुमेंट सबसे इंटरेस्टिंग सुनी ये हाँ. कि इंडिया में द मैरिज इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट एंड वी आर लूजिंग अ चंक ऑफ इट बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड अलाउ True man. है ना? True. There was this discussion about marriage insurance as well, right? जब कॉलेज में थे. वो अभी बाबा मैरिज इंश्योरेंस ठीक है, करा लो. हाँ इंश्योरेंस insurance for marriage. We have insurance products जैसे हाँ. अच्छा, for अच्छा. every event. Yes. So basically, if you're going for marriage, just for finance advice, if you're planning a marriage, है ना, you are going to be spending so much on the venue, on caterers, and God knows what whims and fancies your girl has. फेरी टेल वेडिंग Yeah, so if Insure your- you're doing all of that, have an insurance. So in case the marriage does not happen, कुछ भी reason हो सकता है, COVID है, someone pulls back, maybe, है ना, maybe the girl says no, maybe you say no, है ना, तो the insurance company is gonna cover the cost क्योंकि token money is not gonna come back. All the money that you lose is gonna be covered. So Awesome. go for it. Go for it. Go for same-sex marriage. वेलकम टू फाइनेंशियल यूट्यूब गाइस नाउ वी आर क्या बोलते हैं फिन ट्यूबर there's some lingo for अरे बाबा, I have a perfect way of becoming a finance influencer. हाँ Yeah? वो क्या है We talked about it. Come on. but still. You're asking like you're asking for the first time. like how you say it हाँ, तो first of all कुछ steps हैं. पहले तो अपन क्या करेंगे? I know it. Tell this to him. अपन क्या करेंगे? हाँ. यार, now I feel that I'm the right guy. But anyhow. Chal, anyways. हाँ. So this is going well, I guess, and we have covered every tad and bit today. So I think we can wrap up the discussion because we have met a dead end. जहाँ से conversation cyclical way में वापस repeat होते हैं. या तो हाईवे है जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है. हाँ. So I believe it to be a highway. हाँ. Right? On that note. On that note, we have just proved that Earth is round. क्योंकि we are. So all those flat earthers out there, please make sure that you don't fall. Don't fall off the edge. Yeah. Even if your mind has gone there. don't live on the edge. So thank you so much for listening to us. Yes. And And come back for the next one. Yes. That's what we can say. Okay. See you. Bye bye. Bye.